Okay, we have seen the different editions of Java, Java Standard Edition, Micro Edition, and Enterprise Edition. Java Standard Edition is used for the desktop applications, right? And Java Enterprise Edition it is used for the web and enterprise applications. Okay, it is distributed, it is scalable. This Enterprise Edition. Okay. Then Micro Edition it is used for the embedded and mobile devices. Okay. And we have started with this types of system architecture. Okay. The system architecture consists of single tier architecture, two tier, three tier, and multi tier architecture. So in this tier, in these different types of architecture, different layers are involved. Okay. Presentation layer, business layer, and data layer. What is presentation layer? Presentation layer, it is also known as client layer. Okay. So by using the, for example, we have taken the example of this Gmail, login page of a Gmail. Okay. So login page of a Gmail when a user enter the user ID and password, okay, that page is presentation layer. Okay. The presentation layer interact with the communicate with the application layer. Okay. Then we have seen application layer also. Application layer it is also known as business logic layer. Okay, you can also say it is logical layer. As per the Gmail login page example, once user clicks on the login button, application layer interacts with the database layer. Okay, presentation layer, application layer, and database layer. The database layer, okay, database layer contains the methods to connect with the database. Okay, for example, database layer inserts the data, update data, delete data, okay, modify data. That is the functionality of database layer. Then types of system architecture. Okay, so in single tier architecture, different layers. Okay, like presentation layer, application layer, and database layer are stored on a single server. Okay, are stored on a single server. That's why it is called as single tier architecture. Because all the layers जो है presentation layer, application layer, and database layer are stored on a single server or platform. Okay, so you can say basically a single tier architecture keeps all of the elements of an application. Okay, उसका middleware हो गया, backend हो गया, frontend हो गया in one place only. Okay, so what are the advantages of this layer? Advantages क्या होगा? Easy to implement है because all the layers are installed at one place only. कोई compatibility issue नहीं होगा. Okay, do not have compatibility issue also. Deployment का cost कम होगा, right? The cost of deployment is less. ये सब इसके advantages हो गए of single tier architecture. Okay, what will be the disadvantages? Can you say disadvantages of single tier architecture? Anyone disadvantages? Yesterday we have seen this, na? All the layers, presentation layer, application layer, database layer stored at one place. So what will be the disadvantage? It does not support distributed access, right? Distributed access को support करेगा data के वो मतलब data अलग distributed का meaning क्या है? Distributed means तुम्हारा जो फ्रंट एंड है बैक एंड है वो क्या है डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम पे इंस्टॉल है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन ठीक है तो तुम उसको रिमोटली एक्सेस कर सकते हो एनीवेयर तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड सपोर्ट नहीं करेगा ठीक है तो इट डज नॉट सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सेस फॉर डेटा रिसोर्सेज ये डिसएडवांटेज हो गया ऑफ सिंगल टायर आर्किटेक्चर नाउ टू टायर आर्किटेक्चर okay see in two tier architecture presentation layer runs on a client side okay presentation layer
or client layer, it's same only, client layer or presentation layer. Okay, so presentation layer runs on a client side, and a database layer gets stored on a server. तो ये दोनों separate है. This client layer and database layer, client layer are stored at the client side, and the database layer stored at the gets stored on a server. Okay, so separating these two components, client layer and database layer, into two different locations, okay, represents a two-tier architecture. ये separate है ना, this client layer is stored at the client side and database layer is there on the server side. मतलब ऐसा एप्लीकेशन जिसमें क्लाइंट लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर क्लाइंट साइड में है और डेटाबेस लेयर उनके सिस्टम में नहीं है, क्लाइंट साइड में नहीं है, वो कहाँ पे डेटाबेस लेयर सर्वर पे इंस्टॉल्ड है. दैट रिप्रेजेंट्स टू टायर आर्किटेक्चर. ओके, टू टायर आर्किटेक्चर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, क्लाइंट टायर एंड डेटाबेस टायर. ओके, दो पार्ट में डिवाइडेड है. तो क्लाइंट सिस्टम, क्लाइंट साइड पे क्या होगा, क्लाइंट सिस्टम handles both presentation layer and application layer. तीन लेयर है ना, presentation layer, application layer and database layer. The client side handles both presentation and application layer, and database जो है database layer, ठीक है, handles database layer stores at server layer. Okay, so we can say this system two-tier architecture, it is also known as client server application, because ये दो पार्ट में डिवाइड है. क्लाइंट साइड में क्या है, क्लाइंट सिस्टम हैंडल्स बोथ दी प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर, और सर्वर सिस्टम क्या हैंडल कर रहा है, डेटाबेस लेयर. ठीक है, so that's why it is also known as two-tier architecture. It is also known as client server application. Okay, so the communication takes place between the client and the server, right? कम्युनिकेशन किसके बीच में हो रहा है, क्लाइंट और सर्वर के बीच में होता है. ठीक है, सो द कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर. क्लाइंट सिस्टम क्या करेगा, सेंड्स द रिक्वेस्ट टू द सर्वर सिस्टम. ठीक है, सर्वर सिस्टम देन processes the request and sends back the data to the client system. Okay, so this single two-tier architecture, it is also known as client server application. ठीक है, so for example इसका एडवांटेजेस क्या होगा, व्हाट विल द एडवांटेजेस ऑफ टू टायर आर्किटेक्चर. क्लाइंट साइड पे क्या है, क्लाइंट साइड हैंडल क्या कर रहा है, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर दोनों. सर्वर साइड इज हैंडलिंग द डेटाबेस लेयर. ठीक है, एक ही सिस्टम पे नहीं है, दो सिस्टम पे डिवाइडेड है. तो एडवांटेजेस क्या हुआ, इजी टू मेंटेन और मॉडिफिकेशन भी इजीली हो सकता है. ठीक है, प्रेजेंटेशन का पार्ट अलग से मॉडिफिकेशन एंड उसका डेटाबेस का अलग से मॉडिफिकेशन इजी होगा, बिकॉज एक प्लेस पे नहीं है. ठीक है, देन कम्युनिकेशन फास्टर होगा बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर. ठीक है, कम्युनिकेशन भी फास्टर होगा, लाइक वेब ब्राउजर. ठीक है, वेब ब्राउजर में जो मतलब जो भी हम पेज एक्सेस करते हैं, वेब पेज, उसका डेटा कहाँ पे स्टोर है, डेटाबेस लेयर पे स्टोर है. ठीक है, तो कम्युनिकेशन फास्टर ही होता है यूजुअली थ्रू द नेटवर्क. ठीक है, तो इसका दो एडवांटेजेस है, इट इज इजी टू मेंटेन और मॉडिफिकेशन इज लिटिल बिट इजी आल्सो, एंड कम्युनिकेशन इज आल्सो फास्टर इन टू टायर आर्किटेक्चर. ठीक है, okay, what will be the disadvantage of this two tier architecture? डिसएडवांटेज क्या होगा, see in two tier architecture application performance will be degrade upon increasing the users. अगर यूजर्स इंक्रीज होंगे तो परफॉर्मेंस डिग्रेड होना चालू हो जाएगा. क्यों ऐसा होगा, बिकॉज दोनों लेयर अलग अलग अपने सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है, एक क्लाइंट सिस्टम पे है और एक सर्वर सिस्टम पे. ठीक है, तो जैसे ही फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा अपॉन इंक्रीजिंग द यूजर्स. जितने यूजर्स इंक्रीज होंगे परफॉर्मेंस में क्या आएगा,
लिटिल बिट इफेक्ट आएगा. ओके, देन इट इज कॉस्ट इनएफेक्टिव ऑल्सो, नॉट कॉस्ट इफेक्टिव, इट इज कॉस्ट इनएफेक्टिव. सिंगल टायर आर्किटेक्चर यू कैन से वो कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि लेयर्स आर इंस्टॉल्ड एट वन प्लेस ओनली. ठीक है, बट इसके लिए हम लोग को दो अलग सिस्टम चाहिए, दोनों को मैनेज करना पड़ेगा अपने अपने साइड पे, तो इट इज कॉस्ट इनएफेक्टिव टू टायर आर्किटेक्चर. ओके, now three tier architecture. See this diagram. Client tier, application tier and database tier. Three layers है ना, client layer, application layer and database layer. Okay, so three tier architecture comprise of presentation layer, or you can say client layer also, presentation layer, application layer and database layer. Okay, तो client layer क्या है? Client layer represents a web browser. Suppose तुम्हारा जो वेब ब्राउजर है ना, एनी वेब ब्राउजर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, एनी वेब ब्राउजर, ठीक है. तो क्लाइंट लेयर सपोज इट रिप्रेजेंट्स वेब ब्राउजर. वेब ब्राउजर तुम्हारा क्लाइंट साइड है, ठीक है. क्लाइंट साइड कुछ भी हो सकता है, रिप्रेजेंट वेब ब्राउजर हो सकता है, कोई एप्लीकेशन हो सकता है, जैसे जीमेल का एप्लीकेशन जो पेज है लॉगिन पे, दैट इज क्लाइंट साइड ओनली ना. तो इट रिप्रेजेंट वेब ब्राउजर और एनी अदर एप्लीकेशन. ठीक है, तो क्लाइंट लेयर क्या करेगा, मेक्स रिक्वेस्ट टू दी सर्वर. क्लाइंट टायर जो है मेक्स रिक्वेस्ट टू दी सर्वर हु विल बी सर्विंग द रिक्वेस्ट, राइट. आइदर वो स्टैटिक पेज होगा, आइदर वो डायनेमिक पेज जो भी होगा, दैट इज प्रेजेंट इन द वेब सर्वर. ठीक है, बिजनेस लेयर क्या करेगा, उसको एप्लीकेशन लेयर, दिस लेयर प्रोवाइड्स द बिजनेस सर्विसेज. एप्लीकेशन लेयर क्या प्रोवाइड करता है, बिजनेस सर्विसेज. इट हैंडल्स द बिजनेस लॉजिक पार्ट. ओके, तो क्या लॉजिक होगा, फॉर एग्जाम्पल वैलिडेशन पार्ट. ठीक है, वैलिडेशन ऑफ डेटा, कैलकुलेशन ऑफ डेटा, डेटा इंसर्शन, ये सब लॉजिकल पार्ट हु इज हैंडलिंग एप्लीकेशन लेयर. ठीक है, तो बिजनेस लॉजिक जो है दिस लेयर, बिजनेस लॉजिक लेयर, और यू कैन से एप्लीकेशन लेयर. ठीक है, वो कहाँ पे रहता है, बिटवीन दी फ्रंट एंड एंड बैक एंड. ये एक ही बात हुई ना, ये फ्रंट एंड है, दिस इज क्लाइंट लेयर. अलग मतलब डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स आर गिवन हियर. अभी फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में ये क्लाइंट लेयर इज फ्रंट एंड एंड डेटाबेस लेयर इज बैक एंड. ओके, तो दिस एप्लीकेशन लेयर कहाँ पे है, ये आर सेंट्रलाइज्ड इन, सेंट्रलाइज्ड बिटवीन फ्रंट एंड एंड बैक एंड. ओके, तो ये बिजनेस लॉजिक लेयर, एप्लीकेशन लेयर हैंडल्स दी लॉजिकल पार्ट लाइक वैलिडेशन करना, कैलकुलेशन करना, ये सब एप्लीकेशन लेयर का काम है. देन डेटाबेस लेयर. डेटाबेस लेयर क्या है, दिस लेयर इज द, you can say this layer is the external resource such as database. Okay, database हो गया, so it is responsible for storing the data. पूरे डेटा यहीं पे है. ओके, so this layer can also this layer stores the methods to connect with the database. ठीक है, लाइक उसका फंक्शनैलिटी क्या है, इंसर्ट करना, अपडेट करना, डेटा डिलीट करना. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट थ्री टायर आर्किटेक्चर: क्लाइंट लेयर, एप्लीकेशन लेयर एंड डेटाबेस लेयर. ओके, तो एग्जांपल तुम दे सकते हो, कोई भी एप्लीकेशन थ्री टायर आर्किटेक्चर. क्लाइंट लेयर के साइड में समझो वेब ब्राउजर तुम एक्सेस कर रहे हो. ये वेब ब्राउजर के थ्रू तुम मतलब विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर यू आर सर्चिंग एनी वेब पेज. तो कहाँ पे जाएगा, वो एप्लीकेशन लेयर में जाएगा. एप्लीकेशन लेयर डेटाबेस लेयर से कनेक्ट करेगा एंड देन डेटाबेस लेयर क्या करेगा, उसको बैक देगा, जो भी उसका ये रहेगा, रिजल्ट रहेगा, क्लाइंट लेयर को मिलेगा. ओके, नाउ वी विल सी एडवांटेजेस ऑफ थ्री टायर आर्किटेक्चर. ठीक है, तो एडवांटेजेस क्या होगा, स्केलेबिलिटी का एडवांटेज है इसका. ठीक है,
स्केलेबिलिटी क्या है कि एडवांटेज है थ्री टायर आर्किटेक्चर का। स्केलेबिलिटी मीन्स ईच टायर जो ईच लेयर है कैन स्केल हॉरिजॉन्टली, क्योंकि सब अपने अपने सिस्टम पे इंस्टॉल है, ठीक है। थ्री लेयर्स आर डिवाइडेड एट थ्री डिफरेंट प्लेसेस, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्केलेबिलिटी इशू नहीं आएगा, ठीक है। अगर तुमको प्रेजेंटेशन लेयर में नंबर ऑफ यूजर्स इंक्रीज करना है या एप्लीकेशन लेयर में कुछ इंक्रीज करना है, तो तुम अपने ईच लेयर को स्केल कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली, ठीक है। देन सिक्योरिटी भी इसमें इम्प्रूव्ड रहेगा इन थ्री टायर आर्किटेक्चर। क्यों? बिकॉज क्लाइंट के पास डायरेक्ट एक्सेस नहीं है डेटाबेस का, ठीक है। क्लाइंट इज नॉट मतलब डायरेक्टली एक्सेसिंग द डेटाबेस। बीच में क्या है, एप्लीकेशन लेयर है जो वैलिडेशन पार्ट, कैलकुलेशन पार्ट हैंडल कर रहा है, ठीक है। तो सिक्योरिटी इसमें इम्प्रूव सिक्योरिटी, दैट इज अनदर एडवांटेज। ओके, देन और क्या एडवांटेज होगा उसका? सी इसमें सेपरेशन ऑफ यूजर इंटरफेस लॉजिक, मतलब क्लाइंट साइड लॉजिक एंड बिजनेस लॉजिक, ठीक है। तो ये लेयर में क्या है, सेपरेशन ऑफ यूजर इंटरफेस लॉजिक और बिजनेस लॉजिक, दोनों क्या है, अलग है। तो क्या होगा इसमें, मेंटेनेंस क्या होगा, विल बी इजी ओनली, ओके, दैट इज द एडवांटेज। पर डिसएडवांटेज क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगा, राइट। कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगा, हमारे एफर्ट्स इंक्रीज हो जाएंगे, बिकॉज थ्री लेयर्स डिवाइडेड हो गए अपने अपने प्लेस पे, तो कॉम्प्लेक्सिटी और एफर्ट्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ दिस लेयर थ्री टायर आर्किटेक्चर। Now last layer is this one, multi-tier architecture. Okay. So in multi-tier architecture, okay, multi-tier architecture में client layer, presentation layer and client layer, presentation layer, or you can say database layer. ठीक है. See, let me read this first. The multi-tier architecture or multi-layer architecture is a client-server architecture in which presentation, एप्लीकेशन और डेटा जो लेयर है वो फिजिकली सेपरेटेड है, लाइक थ्री टायर आर्किटेक्चर, ठीक है। तो बाय सेग्रीगेटिंग एन एप्लीकेशन इनटू टायर्स, ठीक है, डेवलपर्स एक्वायर द ऑप्शन ऑफ मॉडिफाइंग और एडिंग अ स्पेसिफिक लेयर इंस्टेड ऑफ नेट रीवर्किंग द एंटायर एप्लीकेशन। ये तो इसका एडवांटेज हो गया, थ्री लेयर्स जो है वो फिजिकली सेपरेटेड है, तो इजीली वो मॉडिफाई हो सकता है। अगर तुमको कोई और लेयर ऐड करना है, ठीक है, कोई और बिजनेस लॉजिक का पार्ट हैंडल करना है, नेटवर्किंग का कुछ हैंडल करना है, यू कैन इजीली ऐड, बिकॉज फिजिकली वो क्या है, सेपरेटेड है, ठीक है, ऑल दी थ्री लेयर्स। नाउ सी दिस, इन मल्टी टायर आर्किटेक्चर, ठीक है, लेयर्स आर डिवाइडेड इनटू लाइक दिस, क्लाइंट लेयर है इसमें, प्रेजेंटेशन लेयर है, ठीक है, इसमें मोर लेयर्स आर एडेड इन दिस मल्टी टायर आर्किटेक्चर। क्लाइंट लेयर अलग है, प्रेजेंटेशन लेयर है, बिजनेस लेयर है, इंटीग्रेशन लेयर है एंड रिसोर्स लेयर है, ठीक है। फाइव लेयर्स आर इन्वॉल्व इन दिस मल्टी टायर आर्किटेक्चर, ठीक है। सिंगल टायर में, टू टायर में, थ्री टायर में ओनली थ्री लेयर्स आर देयर, क्लाइंट लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, नहीं सॉरी, क्लाइंट लेयर, एप्लीकेशन लेयर एंड डेटाबेस लेयर, ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशन लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज, डोंट बी कंफ्यूज हियर, एप्लीकेशन लेयर इसमें से कौन सा वाला है, कैन एनीवन आंसर दिस? कौन सा नेम इसमें से एप्लीकेशन लेयर है? बिजनेस लेयर, राइट, बिजनेस लेयर ना, एप्लीकेशन लेयर है। तो क्लाइंट लेयर, सी क्लाइंट लेयर क्या है तुम्हारा, दिस लेयर रिप्रेजेंट्स जितने भी डिवाइसेस है, ऑल डिवाइस और सिस्टम, ठीक है, क्लाइंट जो एक्सेस कर रहा है, क्लाइंट साइड जो डिवाइस यूज हो रहा है, दैट इज क्लाइंट लेयर।
तो क्लाइंट लेयर कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल वेब ब्राउजर, कोई भी एप्लीकेशन, ठीक है, कोई भी नेटवर्किंग का एप्लीकेशन, कुछ भी, वो तुम्हारा अगर क्लाइंट साइड सिस्टम पे चल रहा है तो दैट इज क्लाइंट लेयर। ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होगा, जितने भी प्रेजेंटेशन लॉजिक के पार्ट है, ठीक है, ऑल प्रेजेंटेशन लॉजिक रिक्वायर्ड टू सर्विस द क्लाइंट, क्लाइंट को जो भी प्रेजेंटेशन लॉजिक चाहिए ये लेयर प्रोवाइड करेगा। इसमें क्लाइंट और प्रेजेंटेशन लेयर दोनों क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है। तो प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या है यहाँ पे, प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगा, सेशन मैनेज करेगा, ठीक है, रिस्पॉन्स जो है उसका रिस्पॉन्स को हैंडल करेगा क्लाइंट लेयर के, ठीक है, डिलीवर करेगा रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट जो भी। ठीक, प्रेजेंटेशन लेयर का सिंपली इसका काम ये है, यूआई एलिमेंट्स, पेज का डिजाइनिंग, कुकीज मैनेजमेंट, सेशन मैनेजमेंट करना। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर का। बिजनेस लेयर का सेम ड्यूटी है जो हम लोगों ने अभी देखे। ठीक है, लॉजिकल पार्ट लाइक वैलिडेशन करना, डेटा कैलकुलेशन करना, ये सब काम क्या है, बिजनेस लेयर का काम है। ठीक है, सिंपल। इंटीग्रेशन लेयर, इंटीग्रेशन लेयर का क्या काम है, इंटीग्रेशन लेयर क्या करता है, कम्युनिकेट करता है डेटाबेस सिस्टम से। ठीक है, इट कम्युनिकेट्स विद दी डेटाबेस सिस्टम। तो ये जो इंटीग्रेशन लेयर है वो क्या करता है, फॉर एग्जांपल यू कैन से डेटाबेस से कनेक्ट होने के लिए कुछ कंपोनेंट रिक्वायर्ड होते हैं, कुछ मेथड्स रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है इंटीग्रेशन लेयर, वो मेथड्स प्रोवाइड करता है, किसको, रिसोर्स लेयर को। किसको प्रोवाइड करता है, रिसोर्स लेयर को। लाइक कनेक्टर, यू कैन से, तुम नहीं पढ़े होंगे ना कनेक्शन अभी, डेटाबेस कनेक्शंस के लिए डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज होते हैं, डिफरेंट कनेक्शंस, डिफरेंट ड्राइवर्स, वो कौन प्रोवाइड करता है, इंटीग्रेशन लेयर प्रोवाइड करता है रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स टू कनेक्ट विद द डेटाबेस, दैट इज इंटीग्रेशन लेयर। ओके, देन द रिसोर्स लेयर, रिसोर्स लेयर का क्या काम है, इसमें तुम्हारा क्या रहेगा, रिसोर्सेस रहेगा। ठीक है, लाइक टू कनेक्ट विद दी, लाइक डेटाबेस लेयर। ठीक है, डेटाबेस लेयर की तरह ये काम करता है रिसोर्स लेयर। इसमें तुम्हारे पूरे डेटाबेस के मेथड स्टोर्ड रहेंगे। ठीक है, और जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो वेब पेज, वेब ब्राउजर के थ्रू ये मिलेगा इंफॉर्मेशन, तो वो उसको क्या करेगा, क्लाइंट लेयर को रिटर्न देगा इंफॉर्मेशन, दैट इज रिसोर्स लेयर। ठीक है। ओके, नाउ सी, इन सिंगल टायर आर्किटेक्चर, okay, can you answer any advantage of this single die architecture? क्या एडवांटेज होगा, एनी वन एडवांटेज ऑफ द सिंगल die आर्किटेक्चर? या राइट इन द चैट बॉक्स एनी वन एडवांटेज ऑफ सिंगल die आर्किटेक्चर। नहीं बता सकते हो एडवांटेज क्या है इसका, सिंगल die आर्किटेक्चर का? कोई कंपैटिबिलिटी इश्यू नहीं होगा, राइट? अच्छा, एग्जांपल बता सकते हो सिंगल die आर्किटेक्चर का, ऐसा कोई एप्लीकेशन
तुमको लगता है वो सिंगल टायर आर्किटेक्चर है? MS ऑफिस, राइट? MS ऑफिस क्या है? इट इज एन एग्जांपल ऑफ सिंगल टायर आर्किटेक्चर ओनली। ठीक है, तो MS ऑफिस तुम्हारा हो गया ये सिंगल टायर आर्किटेक्चर का एग्जांपल। ओके, कॉस्ट एफिशिएंट है ये, राइट? सिंगल टायर आर्किटेक्चर कॉस्ट एफिशिएंट है, ये एडवांटेज हो गया इसका। डिसएडवांटेज क्या था? इट डज नॉट सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सेस। ठीक है, रिमोट एक्सेस नहीं, रिमोट और डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सेस सपोर्ट नहीं करेगा ये, क्योंकि एक ही प्लेस पे है ना, तो रिमोटली कैसे एक्सेस कर सकते हैं? ठीक है, तो इट डज नॉट सपोर्ट रिमोट और डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सेस फॉर डेटा, राइट? ये डिसएडवांटेज हो गया। टू टायर, थ्री टायर, मल्टी टायर। नाउ द नेक्स्ट आर्किटेक्चर इज एंटरप्राइज आर्किटेक्चर। ओके, एंटरप्राइज आर्किटेक्चर में वी हैव टू सी क्लाइंट लेयर। एंटरप्राइज आर्किटेक्चर में अलग अलग लेयर्स है। ठीक है, क्लाइंट लेयर है, वेब लेयर है, बिजनेस लेयर है, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, till now any doubts? Is it clear to all? Single tier architecture, two tier architecture, three tier architecture, and multi tier architecture. Okay, clear? Okay.